Okay, so now, uh, yeah, I get that. So, as I was about to say, we'll go into the uh, lab manual, old lab manual, correct? And then in the DevOps lab manual, I have my experiment number 2. Okay, over here, if I go, I have this tool, online learning tool. Okay, if you are uh, if you are visiting this lab manual, it is okay, but do not perform anything that I am performing over here. Okay, just look at what I'm doing. Okay, because that will be very swift, very fast, and I won't repeat it again. All right. So uh, just look at the screen, what is happening, and then when I tell you to perform these things, okay, you have to perform. Okay, so I selected the very first goal. All right, I clicked on everything that is next, and then I close this particular goal to reach. Okay, it's a very simple goal. If you do 2 commits in a line, all right, it will reach your goal. Okay, but we don't want that to happen. So what we'll do is assume that as I said, okay, कि हमने commit 0 था, right? At this particular commit 1, we already have our file that is f1.txt. Okay, तो ये assume करते हैं कि हमारे पास f1.txt है. Okay, now from this point onwards, see our pointer is on main, right? हमारा जो head है, okay, if I just click over here, which I don't suggest you should do, but if I click over here, it says my head is over here. Okay, and that head is basically shown by the pointer. Okay, this pointer. Okay, asterisk sign. All right. So now I'll write all these commands over here. If you can see, if I click on that, okay, it basically checks out to that particular commit, and then it checks out back to the main, all right, main branch. All right. So basically that is to switch between different points. All right. So as I said, if I write commit 2 times, it will reach the goal. All right. So I don't want to write commits 2 times. My scenario, if you remember, was that we have this f1.txt. Now we'll create 3 branches. Okay. So just look at the dollar sign over here, over on this left side uh, corner. Okay. Uh, the first command that we'll write is to make a branch. Okay, and that is get branch. Okay, get branch, and the name of the branch is merge branch. Okay, so when I click on enter, I have one more merge branch. Okay, over here. Similarly, what I do, I press up arrow, I get the previous command, I remove this merge branch, I create previous branch. Sorry, no space. Okay, and then the third one, that is cherry beer. So, I have a habit of writing space after every letter. Okay, so I have 3 branches. Okay, now notice that I haven't made any commits to it over here. Okay, ये जो branches है सिर्फ पैदा हुए हैं. इनके अंदर वही फाइल है f1.txt. ओके, हर एक को एक कॉपी दिया हुआ है. करेक्ट. हर एक को एक कॉपी मतलब डुप्लीकेशन नहीं है. Okay, that is the beauty of Git. Okay, it does not create duplicates. It just hides the detail uh, for from the users. Okay, based on what are the privileges. Okay, so if you are allowed for to see one file and not the other, it will make sure that it will do that for you. All right, so it does not create multiple copies. Okay, remember this. I forgot to tell this in every other batch, basically. Okay, so remember that.
Okay, so now I make a commit. Okay, so git commit. See what happens. My main branch moves further. Okay, so now I have this in our case, in our diagram situation. Now we have created F2 and made our second commit. Okay, now we go back to our merge branch and we'll make a commit over there. Okay, so to switch to our merge branch, the command is git checkout. Okay, so git checkout and then merge br. So merge. Okay, you see the pointer which was previously on main is now on merge branch. Okay, so the head is on merge branch. Now I make a commit over here. I already have the command, so I just go back and I click over there. Okay, so now what has happened is I've created a commit on merge branch. Okay, now assume that this is the scenario where we added a file called merge.txt and then made a commit. Now I'll go to the other two branches. Okay, so same thing with rebase and the same with cherry. cherry branch. Okay, and always remember at the end of it, okay, since we have to accommodate all these changes into our main branch, we should always return to our main branch. Okay, so git checkout main. Now I come back to my main branch and we'll first try the merge command. Okay, so git merge and the name of the branch which is merge. Okay, merge br. See what happens. It has created a new commit which has a pointer to C2 as well as C3. Okay, so the changes which were there in C2 as well as the changes which were there in C3, okay, are now copied in C6. Okay, and the common line of code, that is C1, that is not disturbed. There is no change in this line of code. The only change in the line of code was in C2 and C3. Okay, because they were different branches. Okay, the line of code from C2 C0 to C1 was the same. Now we try with, since we are on the main branch, we'll try with rebase branch. Okay, so get rebase and rebase. Okay, now before I click, okay, I want you to very carefully note what are the changes that are happening. Okay, so okay, okay. You see what happened before it before it cut this main branch from here. It detached it from here. What it did was glowed it glowed this C2 a little bit, C3 a little bit. Basically, it detected that these are the two changes that are uh, the, the difference between rebase and the other two branches. Okay, the main branch. Sorry, these are the other two changes. Okay, why? Because C6 was basically a combination of C2 and C3, right? So these are the two changes. So now what it did was it copied C2 and C3, it added it over here, and then it removed this particular link, which was the main branch, and it continued the main branch from here. Okay. So now this is your main branch. Okay. And this again is your main branch. Okay. And your rebase branch is at this point. Okay. Now, this might seem very difficult to understand, but let me just simplify it. Okay. So what I'll do is I'll just
check out to rebase. Okay, rebase BR. Oh, sorry, to git checkout. Git rebase. Okay, so git checkout rebase BR. All right, and now I make a commit and see what happens. All right, so you understand this. We still have 4 branches. Okay, even if you feel that after merging, after rebasing, the linear structure, you got a linear structure. This does not mean that your rebase branch is nowhere to be found. It will be there unless and until you delete that branch explicitly. Okay. So if I decide at this point, okay, at arriving at this point, or if I decide again I want to have a linear structure. Okay, now of course I have to go to my main branch first. Okay, so git checkout main, and then again I'll git rebase. Git rebase beyond. Okay, see what will happen again. C2 and C3 are the changes. Head moves over here. We again get a linear structure. Okay, I hope that clears up everything. Yes. Okay, now we'll check out to our last branch, which is the cherry branch. Okay, and we had one more commit over here, so we'll just make a commit over here. All right, because we want to copy C5 and not the latest one, right? And then we'll move back to our main. Okay, git checkout, and then after I check out to my main, what I want to do is I want to cherry pick this particular commit, that is C5 commit. C5 is the commit ID. Okay, it's not the branch name. Branch name is cherry BR. All right. So I write git cherry hyphen pick, sorry, pick, and then cherry BR. All right. So git cherry pick and cherry BR. So, oh sorry. I did the same mistake. It should be C5. Nobody ever told me. I have 2 people over here sitting beside me and they are not paying attention. Okay. So git cherry pick and C5. So when I click on this, what happens is it copies that particular C5 and it pastes it at the end. Okay. Now this revert. Okay. If I just write git revert over here, git revert and then C5. Okay. It won't work over here. This is disabled for this level. Okay. This is a beginner level. Okay. What we took was the very first problem. Okay, if you saw that particular thing, okay, so in that we selected the very first one just to demonstrate this particular thing. So what you can do is after you have learned all the commands, you can come over here to visualize this. Okay, or the other way around as we are done. That you can visualize this and then go back to your command prompt and then try those commands. Okay, so I'll not give this particular screenshot. If you want, you can take a screenshot of this. Okay, because okay, let me just try put a screenshot. Actually, other batches have this screenshot. Okay, so if you want, you can take it from them. All right. I won't put it on class for now because then it will unnecessarily add things. Okay. So from now on, we'll do what? We'll perform our practical in uh, terminal. Okay.
So now what I want you to do is perform things as and when I say, okay, and you have to be very synchronous because how many of you? 21 of you are okay. Two logins are from my side, so 19 of you are online and two are sitting with me. Yeah? तुम्हारा भी दो है क्या? हाँ? 17 तेरह नहीं है क्या? अच्छा तो 20 में से दो लोग यहाँ पे बैठे 18 लोग ऑनलाइन हैं ठीक है तो दिस हैज टू बी अ वेरी सिंक्रोनस एक्टिविटी ओके अगर मैंने बोला एंटर करना है तो करना है नहीं करना है तो नहीं करना ठीक है ओके सो लेट्स स्टार्ट सो सबसे पहले व्हाट विल डू इज आई होप गिट इज इंस्टॉल्ड लेट मी गेट अ वर्ड फॉर दैट एज वेल इधर है इधर तो नहीं गया गिट इंस्टॉल्ड है सबके पास Yes. यस यस ओके तो तीन चार तो यस आ गए मुझे ओके तो देन we'll move ahead okay so the first thing that we did is created a project on a desktop right जैसे मैंने बोला ये प्रोजेक्ट कहाँ शुरुआत हुआ है तुम्हारे डेस्कटॉप पे ओके तो यहाँ पे एक मैं फोल्डर बनाऊंगा राइट क्लिक करूंगा न्यू फोल्डर बनाऊंगा करेक्ट सो क्रिएट अ न्यू फोल्डर और उस फोल्डर का नाम तुम्हें देना है DevOps DEVOPS सब स्मॉल ओके और तुम्हारा बैच कौन सा A4 सब स्मॉल में चाहिए ओके क्रिएट ओके DevOps A4 आया ओके जस्ट मूव इनटू द फोल्डर जिसका विंडोज है वो राइट क्लिक करेगा तो गिट बैश हियर ओपन हो जाएगा ओके दिस इज जस्ट टू minimize the errors that you might get okay कि डिफरेंट लोकेशन पे है मुझे दिखा नहीं रहा है मुझे प्रॉब्लम हो रहा है ओके तो जस्ट राइट क्लिक करो गिट बैश शेयर करो जो लोग ऑनलाइन है उबंटू यूज कर रहे हैं ओपन इन टर्मिनल करो ओके ओपन इन टर्मिनल करो लेकिन एक नहीं सॉरी सॉरी जो लोग विंडोज में है ओके तुम्हें एडमिन में टर्मिनल खोलना पड़ेगा दैट इज योर CMD ओके तो क्या करो विंडोज बटन पे प्रेस करो वहां पे लिखो CMD ओके CMD जैसे ही लिखोगे तो जैसे यहाँ पे टर्मिनल आया तुम्हारा CMD आएगा उसको राइट क्लिक करना ओके राइट क्लिक करने पे तुम्हारे यहाँ पे आएगा ओपन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओके तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना उसको ओके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद अब तुम्हारा लोकेशन तुम्हें पता नहीं है ना तो लोकेशन पता करने के लिए मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा ओके डोंट डू इट ऑन योर साइड पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है ओके जो विंडोज पे है ऊपर फोल्डर का नाम लिख के आया होगा जस्ट क्लिक ऑन दैट यहाँ पे नहीं होगा लेकिन तुम्हारे वहाँ पे होगा विंडोज में होगा ठीक है तो विंडोज पे जैसे ही तुम्हारे फोल्डर के नाम पे क्लिक करोगे तो वो पूरा URL दिखा देगा C: से लेके पूरा 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 जो भी है C:D: जहाँ पे भी है नहीं डेस्कटॉप पे तो C: होगा राइट तो C: फिर यूजर फिर एडमिनिस्ट्रेटर फिर डेस्कटॉप फिर उसके अंदर तुम्हारा क्या है DevOps B4 सॉरी A4 तो ये पूरा लोकेशन वो दिखा देगा राइट उसको लोकेशन को कॉपी करो और वो जो एडमिनिस्ट्रेटर का तुमने CMD खोला है उसमें लिख दो CD स्पेस और फिर वो राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो राइट क्लिक करके ही पेस्ट करना है और कंट्रोल भी नहीं प्रेस करना ओके राइट क्लिक करके पेस्ट करो इट विल गो एंड जस्ट हिट एंटर ओके सो दैट वे यू कैन ओपन जो लोग टर्मिनल यूज कर रहे हैं ओके दैट इज ओपन टू यूज करें राइट क्लिक करें ओपन इन टर्मिनल करें ठीक है ओपन इन टर्मिनल करने के बाद इसको लिखना है SUDO स्पेस SU और एंटर करें ठीक है एडमिन का पासवर्ड पूछेगा यहाँ पे है PCEIT1
01. And okay, so now you'll see that it started from desktop, and when I become a super user, that is administrator, okay, it again goes on the same location. Okay, जैसे DevOps A4 में था, अभी भी DevOps A4 में, correct? If you perform just sudo or sudo minus I, you will start from the very beginning. Administrator का जो home position होता है, वहाँ से start करो. Okay, so I'll show you that one also. So Control Alt T press करोगे, फिर टर्मिनल आएगा, ओके, विंडोज पे, सॉरी उबुंटू पे, इसको ls करेंगे, ls करेंगे तो इट विल लिस्ट ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स. ओके, अब इसमें देखो कहीं भी डेस्कटॉप नहीं है. ओके, सो वी डोंट नो व्हाट दिस लोकेशन इज, है ना. तो एक तो pwd करके आता है कमांड, सो हमें pwd से प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पता चल जाएगी. ओके, कि होम है, होम में एडमिनिस्ट्रेटर पे हम लोग हैं अभी. ऑलराइट, और ये स्क्रीनशॉट्स है. और सॉरी, यहाँ पे है डेस्कटॉप. ओके, यू कैन सी दिस ब्लू कलर, जो ब्लू कलर में आ रहा है वो फोल्डर है. ओके, डायरेक्टरी है. तो अभी आई कैन गो इनटू माय डेस्कटॉप, राइट, बिकॉज इट इज देयर इन माय डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. सो मैं cd लिखूंगा, स्पेस लिखूंगा, कैपिटल D लिख के, E लिख के, टैब दबाऊंगा, तो डेस्कटॉप आ जाएगा. इट वर्क्स ऑन विंडोज एज वेल. आधा लिखो और फिर टैब दबाओ तो पूरा कंप्लीट कर देगा. तो इट अवॉइड्स योर स्पेलिंग मिस्टेक्स. ओके, कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, तो वो जनरेट नहीं रहता. राइट, एंड दैट इज द सेम रीजन व्हाई हमने फोल्डर का नाम भी सब स्मॉल में दिया. सो आई हिट एंटर. ये करने के बाद फिर देन आई हैव माय DevOps फोल्डर, राइट. सो DV लिख दिया तो PS आ गया. देन देयर आर मल्टीपल. ओके, अभी इस लोकेशन पे देखो DevOps के बहुत सारे हैं, है ना. तो आई क्लिक DevOps and it gives, if I click tab twice, it gives me all the options, and then I have A, and then A में tab दबाऊंगा तो उसमें आ रहा है लेकिन A4 है, and I can go inside. ठीक है, तो ऐसे. और उसके बाद फिर से अगर क्या करना है, सुपर यूजर ऐसी, तो मेरे पास ऑलरेडी एक टैब है जो ओपन. ठीक है, तो नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आपका जो स्क्रीन है वो आधे में ओपन करो. ओके, आधे साइड में ये स्क्रीन ओपन करो और आधे साइड में ये टर्मिनल ओपन करो. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज जो मैं कमांड सिखाऊंगा तो वो तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख ही जाएंगे. राइट, मैं इसका लेआउट चेंज कर देता हूँ. एडजस्ट व्यू में ये स्पॉटलाइट. तो अभी व्यू फुल स्क्रीन है. ओके, इसके बाद मैं टर्मिनल भी फुल स्क्रीन करूंगा तुम्हारे लिए. ओके, सो नाउ यू कैन सी माय, और फॉन्ट अगर कर सकता है तो करता है क्या, नहीं बेटा छोड़ो, just observe over here what I'm doing. Okay, so now this is my terminal. अब यहाँ पे मुझे एक फाइल बनानी है. फाइल का नाम है f1.txt. ठीक है, तो there are two commands. One will simply create a command that's simply create a file that's called touch. Okay, so touch f1.txt अगर मैं लिखूं और एंटर करूं, ओके, और फिर लिस्ट करूं सब फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो f1.txt आ गया. ठीक है, तो ये एक तरीका है. दूसरा इज vi. ओके, vi f1 f2 करता हूं मैं, नहीं, vi git इग्नोर करता हूं, डॉट git ignore. git rgmor. ओके, बराबर है. हाँ, vi डॉट git ignore. ओके, तो ये जब मैं लिख रहा हूँ तो आई हिट एंटर, राइट, एंड
ये डॉट गेट इग्नोर लिखने के बाद, vi डॉट गेट इग्नोर लिखने के बाद ऐसा मुझे एक स्क्रीन आ रहा है, ओके। उसके ऊपर मुझे ए प्रेस करना है, ओके। ए प्रेस करते ही यहाँ पे लिखा है क्या आएगा, इंसर्ट, राइट। देन यू कैन टाइप वॉट एवर यू वांट, राइट। तो ये जो डॉट गेट इग्नोर फाइल होता है ना, ओके, दैट इज यूज्ड टू इग्नोर एनी फाइल्स दैट यू डोंट वांट गेट टू ट्रैक, ओके। तो जैसे कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स है जिसमें तुम्हारा पासवर्ड्स वगैरह सेव किया है, ओके, तो वो फाइल्स का नाम तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। तो मैं लिखूंगा pas.txt। मैंने ये अभी बनाया नहीं है लेकिन हम लोग बना देंगे, ओके। तो फिर इस ये करने के बाद अब मैंने सिर्फ फाइल का नाम लिखा है। आई प्रेस एस्केप, ओके, एस्केप प्रेस किया एक बार, फिर आई प्रेस कोलन, दैट इज शिफ्ट दबा के सेमी कोलन प्रेस किया। आई प्रेस डब्ल्यू, आई प्रेस क्यू, okay. So W is for write and Q is for quit, okay. So it will write these changes. I hit enter, okay. इसमें ये changes हुए क्या ये देखने के लिए मैं लिखूंगा cat dot cit ign, okay. So you'll see the contents, that is pass dot txt मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब मेरे पास pass dot txt है नहीं, right? So then I'll just simply create, okay, a pass.txt, that is vi space, vi नहीं टच करते हैं क्योंकि हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं करना है, तो टच pas.txt, ओके। तो नाउ इफ आई लिस्ट आउट ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स, ls करेंगे तो यहाँ पे डॉट गेट इग्नोर जो है वो नहीं दिख रहा है, राइट, और pass.txt, ठीक है, हाँ, ओके। यहाँ पे फोल्डर दिख रहा है क्या, हाँ, ओके। तो लेट्स सी, इसको पहले इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद इसका मजा देखते हैं, ओके। तो नाउ हमने इनिशियलाइज तो किया नहीं है, राइट। सो हम लोग इसको इनिशियलाइज करने के लिए विल राइट गेट ini, दैट इज गेट इनिट, ओके। गेट में हर एक कमांड गेट से स्टार्ट होगा, शुरुआत इनिट से होती है। हिट एंटर, okay. It says it is initialized, it has initialized empty git repository in this particular location, okay. और फिर अगर मैं ls करूं तो क्या हुआ, okay, vi dot git status करके भी गेट इग्नोर तो है, ओके ओके, हाँ सॉरी, ये ls में दिखाएगा, ओके। व्हेन यू लिस्ट आउट ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स, ओके, व्हेन यू लिस्ट आउट ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स, ओके, तो वहां पे तुम्हारा गेट इग्नोर नहीं दिख रहा है, इट इज अ हिडन फाइल, ओके। बट ये pass.txt दिख रहा है विच इज अ नॉर्मल फाइल, ठीक है। लेकिन जब तुम ट्रैक करना चाहोगे, ओके, तो गिट जब डॉट गेट इग्नोर फाइल को, दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड फाइल, ओके। तो गिट डॉट गेट इग्नोर जो है दैट हैज सम स्पेसिफिक मीनिंग इन गिट, एंड द मीनिंग इज कि इसके अंदर जो भी नाम लिखा जाएगा उसको तुम ट्रैक नहीं करोगे, ओके। तो पहले से ही ये अनट्रैक्ड फाइल्स है, लेकिन एटलीस्ट ये दो फाइल्स को ये कंसिडर कर रहा है, डॉट गेट इग्नोर और file1.txt को, ओके। लेकिन pass.txt को वो कंसिडर भी नहीं करेगा, ठीक है। सो नाउ व्हेन आई हैव दिस अनट्रैक्ड फाइल्स, ओके, तो गिट का तरीका ये है कि वी हैव टू ऐड दिस इन स्टेजिंग एरिया, ओके। बट ये सब करने से पहले व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने इनिशियलाइज कर दिया, इसका स्टेटस देख लिया, वी हैव टू सेट आवर क्रेडेंशियल्स, ओके। तो क्रेडेंशियल्स के लिए मैं क्या करूंगा, गिट पे जाऊंगा, GitHub पे जाऊंगा, ओके। यू विल ऑल्सो गो टू योर GitHub अकाउंट, सो git hub.com,
ओके, github.com पे आया, साइन इन कर रहा हूँ मैं। ओके, मेरा है इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड। ओके, ओके, तो अब मैं अंदर आ गया। ऑलराइट, और डेवऑप्स नाम का मैंने ऑलरेडी एक बना लिया है, तो मैं उसको डिलीट करता हूँ। सेटिंग्स, danger zone, this repository, I want to delete, understand, और फिर इसी को कॉपी करना, टाइप करना है, लेकिन इतना मैं मुझसे ही नहीं है, तो मैं कॉपी करके डिलीट करता हूँ। Okay, so now I don't have any repository named DevOps, and neither should you. Okay, तो इस पोजीशन तक हम लोग सब है। ऑलराइट, अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद अगर अकाउंट नहीं है तो MES से लॉगिन करके देखो, शायद जल्दी हो जाए। हो रहा है क्या? हाँ, वो ले लो ना तुम्हारे मोबाइल में, प्लीज। तुम्हारे ऑल दोज हु आर परफॉर्मिंग दिस ऑनलाइन, तुम्हें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आया होगा मोबाइल पे, पास की आया होगा। ओके, तो वो लेके फटाफट लॉगिन करो। ऑलराइट, विल गिव दिस अ मिनट। अगर किसी को यहाँ पे ऑफलाइन हो रहा है टाइम, तो ऑनलाइन भी होगा। तो एक बार हो जाए तुम लोग का, जस्ट पुट सम काइंड ऑफ मैसेज, डन करके डाल दो। मिनट का हो गया। पार्थ का भी हो गया। तो 4-5 लोगों का हो जाए तो आई कंसिडर कि हो गया है। ओके, सो देन वी कैन मूव अहेड। ओके, सुबह का हो गया है, और एक कोई डाल दो, फिर लोग आगे चलते हैं। ओके, चलो 4 लोगों का हो गया, एटलीस्ट 4-5 लोगों का हो गया। ओके, सो नाउ when you go to your Git hub repository, okay, there's this button called new। किसी को न्यू रिपोजिटरी आएगा, किसी को क्रिएट रिपोजिटरी आएगा, ग्रीन बटन कलर का बटन होगा, प्रेस कर दो। ओके, देन ये तुम्हारा यूजर नेम है। ओके, ये यहाँ पे दिखेगा। ओके, यहाँ पे दिखेगा। ऑलराइट, ये हमें चाहिए। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे तुम्हें रिपोजिटरी का नाम डालना है। ऑलराइट, सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज you just have to write DevOps। हम लोग ने वही डिसाइड किया था। ओके, तो स्मॉल अल्फाबेट्स में DevOps डालता हूँ। DevOps is available। See, there is a public folder, sorry, it's a public repository। then there is this git ignore, है ना? तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन दिया है, this choose which files not to track from the list of टेम्पलेट्स। ओके, तो अगर हम लोग रिपोजिटरी पहले यहाँ पे बना देते और फिर वहाँ पे कुछ करते, तो यहाँ पे गेट इग्नोर हम लोग डायरेक्टली बना सकते थे। ओके, तो हम लोगों ने गेट इग्नोर वहीं पे बना दिया। ऑलराइट, तो वो फैसिलिटी यहाँ पे भी है।
Okay, I'll simply create and you will also simply create a repository, क्योंकि अगर git ignore तुमने ऐड किया ना तो एक commit एक्स्ट्रा हो जाएगा. Okay, so you don't have to do that. हम लोग commit इनिशियल कमिट हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही करेंगे. ठीक है, सो क्रिएट अ रिपोजिटरी, सिंपली क्रिएट अ रिपोजिटरी. ठीक है, उसके बाद ये यूआरएल आया है तुम्हें, इसको कॉपी कर लो. ये देखो, ये जो यूआरएल है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लो. ओके, कॉपी किया. कॉपी करने के बाद एक टेक्स्ट एडिटर, ओके, टेक्स्ट एडिटर ओपन करो. टेक्स्ट एडिटर या फिर तुम्हारा अगर गूगल डॉक खुला है उसमें भी किया तो भी चलेगा. यहाँ पे पेस्ट कर दो. ओके, 2 बार पेस्ट करो, एक बीच में 2-3 बार एंटर करो और फिर पेस्ट कर दो. ठीक है, और तो ये बनाने के बाद अब जिनका ये है विंडोज़ है, वो सीधा सीधा ये यूआरएल भी यूज़ करेंगे तो भी चल जाएगा. ओके, सो हमें क्या करना है, यूआरएल बना रहे हैं रिमोट रिपोजिटरी को लिंक करने के लिए. ओके, सो दैट इज गिट रिमोट ऐड, सॉरी, ऐड ADDORIGIN. जैसे मैंने बोला, ये ओरिजिन सिर्फ नाम है. मैं ओरिजिन 1 भी दे सकता हूँ, 1-2 भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ. ओके, सो ओरिजिन एंड देन गिट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड ये जो यूआरएल है ये दे दिया तो विंडोज वालों का काम हो गया, उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं. ठीक है, उबुंटू पीपल हाउएवर इतने से काम नहीं चलेगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको यहाँ पे जाना पड़ेगा. ओके, राइट साइड में जो मेन्यू है उसमें सेटिंग्स है. सेटिंग्स में जाके ये लेफ्ट साइड का जो है, लेफ्ट साइड में जो नीचे आया है एकदम लास्ट में डेवलपर सेटिंग्स है, उसमें जाना है. ओके, डेवलपर सेटिंग्स में जाएंगे तो ये पर्सनल एक्सेस टोकन है, उस पर क्लिक करना है. उसमें भी लास्ट वाला क्लासिक टोकन है, उसे सिलेक्ट करना है. ठीक है, ओके, मेरे केस में ऑलरेडी जनरेटेड है. ओके, डेवऑप्स नाम का. मगर यहाँ पे एक बीच में तुम्हें एक ऐसा जनरेट न्यू टोकन वाला आएगा, उस पर क्लिक करना है. ओके, और क्लिक करने के बाद ये सेकेंड वाला जो है क्लासिक, उसी को सिलेक्ट करना है. ठीक है, राइट. अभी ये थोड़ा सा है ना टीडीएस प्रोसेस है, तो मतलब क्लिक करना है 10-50 बार. तो उसके लिए मैं बताता हूँ कैसे करना है. तो यहाँ पे तुम लोग नाम लिखोगे डेवऑप्स. हाँ, मैं मेरे केस में डेवऑप्स 1 लिखता हूँ. ओके, सॉरी, डेवऑप्स की लिख दो, KEY, और मैं 1 लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा की ऑलरेडी एक क्रिएटेड है. ओके, देन ये जो एक्सपायरेशन है, ये एक्सपायरेशन तुम्हें करना है 90 डेज का. राइट, वाई, बिकॉज विल यूज दिस की थ्रू आउट आवर सेमेस्टर. इसको हम लोग बार बार नहीं क्रिएट करेंगे. ठीक है, देन यू विल कम ओवर हियर. पहला वाला जो रेपो है टैब, सॉरी चेक बॉक्स, उसको सिलेक्ट करोगे विथ योर माउस. ओके, और माउस को इधर बाजू में लेके आओगे. माउस को बाजू में लेके आने के बाद लेफ्ट हाथ जो है, लेफ्ट फिंगर, लेफ्ट हाथ का एक फिंगर तुम्हारा टैब पे होना चाहिए और राइट हाथ का एक फिंगर तुम्हारा स्पेस पे होना चाहिए. ओके, तो करना ये है कि प्रेस टैब और प्रेस स्पेस, फिर फिर टैब, फिर स्पेस, फिर टैब, फिर स्पेस, टैब, स्पेस. ऐसे करते 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 तुम्हें एंड तक जाना है. ओके, तो ये बहुत लंबा चलता है. ओके, लेकिन सारे एक्सेस देने. क्यों? क्योंकि हम लोग को बाद में है ना, जब हम लोग बाद में एट द एंड हम लोग अगर देख रहे हैं कि कोई SSH करना है या कोई कोई भी चीज़ करना है, तो हम लोग को फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि उसको एक्सेस नहीं है वगैरह वगैरह. ओके, तो ये की जो है, ये हम लोग एक जेनेरिक की जनरेट कर रहे हैं, एक क्लासिक की, जिसको पूरा गिट का एक्सेस है. ओके, ऑलराइट. लेकिन ऐसा भी हो सकता है, अगर इफ यू वांट टू कस्टमाइज इट, कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इसके लिए करे, क्या गिट रिपोजिटरी के लिए करे, तो वैसा भी कर सकते हैं जनरेट टोकन. ओके, लेकिन
हम क्योंकि इस डेवऑप्स रिपोजिटरी को नहीं यूज करने वाले, फिर बाद में किसी और रिपोजिटरी को यूज करेंगे इन आवर लास्ट प्रैक्टिकल। तो हम लोग यहाँ पे सब एक्सेस देके एक क्लासिक टोकन जनरेट करेंगे। ओके, जस्ट क्लिक ऑन जनरेट टोकन, और ये जो टोकन आया ना इसे पहले कॉपी करो। ओके, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है, देखो नोटिफिकेशन में, मेक श्योर यू टू कॉपी योर पर्सनल एक्सेस टोकन नाउ, यू वोंट बी एबल टू सी इट अगेन। ठीक है, तो इसको पहले कॉपी करना है। ओके, और ये जो टेक्स्ट एडिटर है, ओके, मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि प्रेफरेबली तुम लोग इस पे करो, क्या, गूगल डॉक्स पे करो, उस पे पेस्ट करना है। ओके, क्योंकि गूगल डॉक्स में जो भी पेस्ट करोगे वो रिटेन हो जाएगा। ओके, अगर अभी नहीं है तो बाद में ओपन गूगल डॉक्स ओपन करके वहां पे पेस्ट कर देना। ठीक है, अभी गूगल डॉक्स ओपन करने में टाइम मत वेस्ट करो। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे एक बार मैंने पेस्ट किया। ऑलराइट, और दूसरी बार जब मैं पेस्ट करूंगा तो ये जो गिट हब है, राइट, गिट हब और ये जो स्लैश है, इनके बीच में पेस्ट करूंगा। ओके, और इसके बाद मैं लिखूंगा @। ठीक है, राइट, और ये जो डॉट गिट है लास्ट वाला, इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, एंड नाउ दिस एंटायर थिंग, इसको शिफ्ट दबा के होम प्रेस करो तो पूरा कॉपी हो जाएगा। सॉरी, एंड तक आएगा और जस्ट कॉपी इट। दिस इज माय कमांड टू ऐड रिमोट रिपोजिटरी यूआरएल, ओके, इन लिनक्स। ठीक है, जो विंडोज के यूजर्स हैं, ओके, वो अगर ये जो अभी हम लोग ने किया मॉडिफिकेशन यूआरएल को, वो नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, उनका वैसे भी चल जाएगा। ठीक है, बट जो रिमोट इसके हैं विंडोज, सॉरी, उबुंटू यूजर्स है, उनको ये करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐड करेंगे, तो जस्ट राइट क्लिक, पेस्ट, ओके, एंड हिट एंटर। अगर कोई एरर नहीं आया तो मतलब कमांड ठीक से चल गया। ठीक है, और सो नाउ एज I said, we also have to make configurations, तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड, राइट। तो उसके लिए लिखो git config, उसके बाद हाइफन ग्लोबल। ओके, हाइफन ग्लोबल इसके लिए दिया जाता है कि तुम्हारा जो पीसी है उसमें जितने भी रिपोजिटरीज करोगे वो तुम्हारे ही नाम से होंगे। ओके, बट अभी ये होना नहीं चाहिए था यहाँ पे, दैट इज लैब में जहाँ पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। लेकिन ऐसा हुआ है कि पहले जो बैच आया था उसको मैं बताना भूल गया, तो अभी उसने ग्लोबल कर दिया तो बाकी सबका भी अफेक्ट हो रहा है, तो अभी मैं सबको ग्लोबल कर रहा हूँ। ठीक है, बट इस अगर ग्लोबल टैग को हटा देंगे तो जिस रिपोजिटरी के लिए तुम ये सेटिंग्स कर रहे हो सिर्फ उसी के लिए ये रहेंगी और दूसरे वाले के लिए अलग सेटिंग्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो git config --- global, then user dot name, sorry, name, डबल कोट्स में मुझे नाम लिखूंगा। ओके, तो ये मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। आई वुड सजेस्ट जो इसके हैं उबुंटू यूजर्स है वो लोग यहाँ से ले, कहाँ से, हमारा जो ये है इसके नीचे देखो यहाँ पे लिख के आया, ये जो ऊपर वाला है उसके नीचे जो लिख के आया होगा, दैट वन। ठीक है, तो वो वाला कॉपी करो, उसको यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। इवन द विंडोज यूजर्स यही कर लो, फिर बाद में हमको तकलीफ नहीं चाहिए। ठीक है, हिट एंटर, तो एरर नहीं आया तो ठीक है। ओके, उसके बाद मुझे चाहिए ईमेल। ओके, सो तो मैं ये हटाऊंगा यहाँ से और यहाँ पे लिखूंगा ईमेल, और फिर डबल कोट्स में मेरा ईमेल। ये ईमेल भी मैं वही दे रहा हूँ जो मेरा गिटहब का है। ओके, तो तुम लोग भी वही दो। ओके, हिट एंटर, कोई एरर नहीं आया तो सब ठीक है। राइट, सो व्हाट डिड वी डू सो फार?
वी एडेड अ फाइल, 2 फाइल्स एक्चुअली, एक F1 एक पास, और फिर एक गेट इग्नोर भी किया है जिसका मेन काम है कि किसी एक फाइल को इग्नोर कर रहा, तो वो फाइल हमारा है पास फाइल, ठीक है। एंड देन व्हाट डिड वी डू, वी चेक द स्टेटस। तो एक बार फिर से स्टेटस चेक करते हैं। ऑलराइट, गेट स्टेटस यूएस। स्टेटस तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने कोई सच कुछ किया नहीं है, ठीक है। गेट रिमोट हाइफन इसको देख गेट गेट रिमोट हाइफन व्यू, फिर ओरिजिन का यूआरएल लिखेगा। हाँ ओके, वो दिखा देते हैं। ऑलराइट, वेरी गुड। सो ये हमने ऐड तो किया है, राइट। क्या था ओरिजिन, तुम्हारा नाम नहीं? वेदांत। वेदांत ने अभी सजेस्ट किया कि ये जो हमने रिमोट रिपोजिटरी ऐड किया है, राइट, तो वो ऐड हुआ है कि नहीं, है ना। तो वो एक बार देख लेते हैं, जैसे हम लोग स्टेटस चेक कर रहे हैं वैसे एक बार ओरिजिन भी ऐड हुआ है कि नहीं चेक करते हैं। तो उसके लिए लिखना है गेट रिमोट हाइफन वी। ओके, तो ये तुम्हारा यूआरएल दिखाएगा। ऑलराइट, तो ये एक बार वेरीफाई कर लो, तुम्हारा ही है क्या? तुम्हारा ही होगा अगर तुमने तुम्हारे लैपटॉप पे किया है। ओके, यहाँ के जो लिनक्स यूजर्स हैं उनको सिर्फ वेरीफाई करो। ओके, ये इतना करने के बाद थोड़ा सा क्लटर हो गया, तो जस्ट प्रेस कंट्रोल एल। ओके, कंट्रोल एल से ओपन टू यूजर्स को। ओके, वो होगा ये कि ये सब कमांड्स ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। स्पेशल कुछ नहीं होगा, सिर्फ कमांड्स ऊपर चले जाएंगे। ऑलराइट, और इसका फायदा ये है कि हम लोग को स्क्रीन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ओके, सो अब मुझे गेट स्टेटस चेक करना है। ओके, और फिर अब मुझे इन फाइल्स को स्टेजिंग एरिया पे लाना है। स्टेजिंग एरिया पे लाने के लिए आई हैव टू राइट गेट ऐड। ओके, अब गेट ऐड दो तरीके से हो सकता है। एक तो फाइल का नाम लिख के, दैट इज f1.txt, एंटर। ओके, अब अगर मैं गेट स्टेटस चेक करूं तो सिर्फ एक फाइल हुआ ऐड हुआ है, दैट इज f1.txt। ओके, और दूसरा तरीका ये है कि गेट ऐड एंड देन मैं इधर लिख दूं डॉट। ओके, जो कि ये बहुत आसान तरीका है ना। तो ऐड डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब होता है सारे फाइल्स जितने भी सारे चेंजेस फाइल्स। हैं। वेदांत बोल रहा है सारे फाइल्स। एंड all tracked files. जो सिलेक्ट करना है वो। और किसी ने और क्या बोला? और किसी ने ऑनलाइन कुछ बोला था? ऑल फाइल्स ही बोला था क्या? ऑल फाइल्स दैट हैड एनी चेंजेस। ओके, ऑल फाइल्स दैट हैड एनी चेंजेस। तो ऐसा है कि डॉट जो होता है ना, दैट इंक्लूड्स, दैट सेज करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो तुम्हारा करंट है, दैट इज डेवऑप्स ए है ना, दैट। ओके, तो तुम लोग ने अगर सी का कमांड्स इसमें किया है लिनक्स में, ओके, तो वहां पे देखा होगा कि तुम लोग लिखते हो डॉट स्लैश और फिर फाइल का नाम, जैसे ए डॉट आउट। ओके, सी का कमांड कंपाइल करने के बाद उसको रन करने के लिए ऐसे लिखते हैं डॉट स्लैश ए डॉट आउट। ओके, तो बेसिकली उसको उसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग कि करंट डायरेक्टरी के अंदर ए डॉट आउट ढूंढो। ओके, सो व्हाट डज दिस suggest? It suggests current working directory. It does not suggest all files. Okay, तो ये ध्यान में रखो। ऑलराइट, और अगर मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेना। ओके, और फोल्डर क्रिएट करने के बाद डॉट स्लैश और फिर उस फोल्डर का नाम डाल देना, तो वो मतलब cd स्पेस डॉट स्लैश उस फोल्डर का नाम डाल देना, तो वो उसके अंदर चला जाएगा। ओके, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डॉट। ओके, सो इस करंट डायरेक्टरी में हमने सब कुछ ऐड कर लिया। एंड नाउ व्हाट वी हैव इज ऑल द फाइल्स आर इन द स्टेजिंग एरिया। फिर से हम लोग एंड पे पहुंच गए, कंट्रोल एल प्रेस कर रहे हैं, जैसे वो टाइपराइटर का सेटिंग्स होता था
पहले टाइप करने के बाद एंड में पहुंच गए, फिर से रीसेट कर दिया। ओके, सो स्टेटस में मैंने क्या किया, सॉरी, सारे फाइल्स अभी स्टेजिंग एरिया में, राइट। द नेक्स्ट स्टेप इज टू कमिट, टू मेक दिस चेंजेस परमानेंट। सो git 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 ओके। लेकिन गिट कमिट जो है इतना सिंपल नहीं है, सिर्फ उसमें एक चीज ऐड करनी पड़ती है, दैट इज द मैसेज, द कस्टम मैसेज दैट यू वांट टू ऐड। ओके, तो वो होता है -m टैग के साथ, ठीक है। -m टैग लिखना है और फिर डबल कोट्स में तुम्हें जो भी मैसेज देना है टू इंडिकेट व्हाट दैट कमिट मीन्स, ओके, तो वो दे सकते हैं। हम लोग का इनिशियल कमिट है तो हम लोग दिए इनिशियल कमिट COMMIT, ओके। डबल कोट्स कंप्लीट करेंगे, एंटर करेंगे, ओके। इट सेज 2 फाइल चेंज, 1 इंसर्शन, क्रिएट मोड, जो भी है, ओके। और इसको चेक करने के लिए कि ये कमिट हुआ है कि नहीं, सो देयर इज अ कमांड कॉल्ड git log। हमें इसको पहले भी चेक करना चाहिए था लेकिन हम लोग ने नहीं किया, ओके, मैं भूल गया। तो जैसे वेदांत ने सजेस्ट किया था कि रिमोट रिपोजिटरी को चेक करके, तो मैं भूल गया पहले चेक करना, तो इट्स ओके। लेकिन तुम लोग देख सकते हो कि अभी हमारे पास लॉग्स में एक ही कमिट है, राइट। तो वो है उसका ये वाला कमिट है, ओके, जो मास्टर पे है ना। मैंने बोला ना, एक हमारा मेन फाइल का नाम क्या होना चाहिए, मेन लाइन ऑफ कोड का मेन होना चाहिए, ना कि मास्टर। ओके, तो ये तकलीफ है बिकॉज मास्टर इज ओल्डर वर्जन, ओके, तो मेन इज न्यूअर वर्जन, तो वो हमें चेंज करना है, ठीक है। और उसका मैसेज है इनिशियल कमिट, और उसके बाद ये कमिट में जो येलो वाला आ रहा है, ओके, दैट इज द कमिट हैश। सो जो C1 C2 C3 हमने देखा था, राइट, ये C1 C2 C3 जो हमने लोग देखा था, ये सब, राइट, वो जो आईडीज हम लोग बोल रहे थे, ओके, कि वो यूनिक आईडीज है कमिट्स के, तो वो ये है येलो वाला, ओके। देन देयर इज द हेड, जिसको हमने देखा था थोड़ा सा इधर उधर करके, दैट इज द हेड पॉइंटर, और ये ब्रांच का नाम है, दैट इज मास्टर, ओके। अभी हमें मास्टर नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेन, तो हम लिखेंगे गिट ब्रांच -m और मेन, ओके। और फिर से एक बार लॉग्स चेक करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि अभी हमारा मास्टर नहीं है, हमारा मेन, ठीक है, तो रीनेम हो गया, ऑलराइट, यस। अब अगर मैं स्टेटस चेक करूं, स्टेटस में कुछ दिखना चाहिए क्या, दिखना चाहिए क्या, नहीं ना। वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ नहीं है, जो भी था हमने कमिट कर दिया, राइट, और ना ही स्टेजिंग एरिया में। तो व्हेन सी दिस, आवर वर्किंग ट्री इज क्लीन, ऑलराइट, देयर इज नथिंग टू कमिट, ऑलराइट। अब अगर मैं चेंजेस करता हूँ तो देन आई विल हैव समथिंग टू कमिट, ओके। तो चेंजेस करने से पहले हम लोग ने कुछ डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे, राइट, तो उसी तरह से जाएंगे, राइट। हम लोग क्या कर रहे थे, 4 ब्रांचेस क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, तो सॉरी 3 एक्स्ट्रा ब्रांचेस क्रिएट कर रहे थे, तो हम लोग ब्रांचिंग देख रहे हैं, राइट। तो राइट गेट ब्रांच और फिर ब्रांच का नाम, तो हमारे इसमें था पहला मर्ज ब्रांच, MERGEBRANCH, ओके। इसको मैं पूरा लिख रहा हूँ अभी, जस्ट टू मेक श्योर, ऊपर कर सकते, उधर से करना पड़ेगा, जस्ट टू मेक श्योर कि तुम्हें ये समझ में आया कि ये मर्ज ब्रांच है, ठीक है। तो गेट ब्रांच और फिर ब्रांच का नाम मैंने लिख दिया मर्ज ब्रांच, आई हिट एंटर, ठीक है। ओके, तो नाउ व्हेन आई क्रिएट मर्ज ब्रांच, मुझे देखना भी है कि वो ब्रांच क्रिएट हुआ है कि नहीं, यस। सो what I have to do is I have to write git branch
ch और फिर क्या -v। यस, तो गेट ब्रांच -v अगर मैं देखूं तो मेरा पॉइंटर कहाँ पे है, मेन पे है। यस, मैंने क्रिएट क्या किया है, मर्ज ब्रांच भी क्रिएट किया है। उस पे एक लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला है क्या, फर्स्ट वाला है फर्स्ट है। ओके, सो ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ से यहाँ तक का है ना, कमिट का जो आईडी है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, एंड द मैसेज दैट इज इनिशियल कमिट कॉमन है दोनों को। ओके, सिमिलरली व्हाट आई डू इज आई एम लेजी टू टाइप। ओके, सो मैं मर्ज हटाता हूँ, उसकी जगह पे लिखता हूँ रीबेस ब्रांच। ओके, और फिर इसी तरह से मैं चेरी ब्रांच भी बनाता हूँ। ओके, चाहिए तो चेरी पिक लिखेगा, नहीं छोड़ो चेरी लिखते हैं, फिर वो कमांड बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेरी ब्रांच बना दिया। हाँ, चेरी पिक के लिए अगेन आई चेक माई कमिट्स, सॉरी ब्रांचेस, गेट ब्रांच -v करके अगेन सी ये ग्रीन वाला क्या है, मेरा हेडर है। राइट, हेडर सेम लोकेशन पे 4 ब्रांचेस जो है टोटल, है ना, सबका कमिट का आईडी सेम है, सबका मैसेज सेम है। राइट, लेटेस्ट जो है सबका सेम ही है। यस, द ओनली थिंग इज वी हैव आर व्हाट आर हेडर ऑन मेन। ओके, नाउ सिंस वी हैव हेडर ऑन मेन, हमें क्या किया था, हमने एक फाइल 2 बनाया था मेन पे। तो लेट्स क्रिएट दैट फाइल टच। अब इसमें मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ। ओके, so let's do one thing, let's not create a file. Okay, let's create a file, sorry, let's pouch f2.txt, क्योंकि हम लोग ने वो प्रॉमिस किया था। राइट, तो वो करते हैं। हाँ, और फिर vi करते हैं। ओके, vi f1.txt। ओके, अब f1 में ऑलरेडी कुछ कमांड है। राइट, ओके, कुछ हमने लिख के रखा है या नहीं लिखा है, नहीं रखा है। ओके, सो मैं एंटर करता हूँ। अब मेरा फाइल एम्प्टी है v1। ओके, f1। राइट, सो मैं a प्रेस कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ सम कोड। तो अज्यूम कर रहे हैं कि ये मेरा पाइथन का कोड है, सम कोड, जिसको हम लिखने से जादू हो जाता है। ओके, तो आई प्रेस एस्केप, आई प्रेस कोलन, आई प्रेस WQ। ओके, समझ लो मैं किस ऑर्डर में कर रहा हूँ, एस्केप, फिर कोलन और फिर WQ। WQ इज राइट एंड क्विट, एंटर। ओके, तो अब मैं स्टेटस अगर चेक करूँ, ऑलराइट, सो गेट स्टेटस, यस, ऑलराइट, तो क्या आता है, 2 अनट्रैक्ड फाइल्स है। ओके, दैट इज एक में मॉडिफिकेशन है। यस, मॉडिफिकेशन किसके साथ हुआ है, f1.txt, पहले खाली था, अब उसमें मैंने कुछ लिख दिया है ना, and then there is a new file that has been added which is file2.txt। okay, तो ये changes are not ये एक तो अनस्टेज है, ठीक है, क्योंकि ये पहले था यहाँ पे, इसको मॉडिफाई किया हुआ है, तो दिस इज नाउ अनस्टेज्ड एंड ये अनट्रैक्ड है, ये बिल्कुल नया है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट से ही सब कुछ करेंगे। तो गेट ऐड एंड डॉट, ठीक है, एंटर किया। गेट ऐड डॉट करने के बाद मैं गेट स्टेटस चेक कर रहा हूँ। ओके, अगर मैं स्टेटस चेक कर रहा हूँ, अगेन द चेंजेस दैट आई मेड, जो कि है मॉडिफिकेशन और एडिशन, नाउ दोज आर इन माय स्टेजिंग एरिया। ठीक है, तो अभी ये स्टेजिंग एरिया के चेंजेस मुझे करने कमिट। ओके, नाउ दिस कमिट इज ऑन मेन ब्रांच। रिमेंबर, ये पॉइंटर हमारा कहाँ पे, मेन पे, राइट, ये यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो नाउ व्हेन आई मेक दिस कमिट, ये हमारा कमिट कहाँ पे जाएगा, मेन पे। सो गेट कमिट -m, और फिर मुझे एक मैसेज देना है। ओके, तो आई राइट सेकेंड
second on main. ठीक है, दिस इज सेकेंड कमिट ऑन मेन, राइट? तो सेकेंड कमिट ऑन मेन लिखे क्या? चलो, लेट्स नॉट बी दैट लेजी। LMIT सेकेंड कमिट ऑन मेन, ओके, एंटर करता हूँ। ठीक है, सेकेंड कमिट ऑन मेन लिखा मैंने, एंटर किया, एंड देन आई चेक माई लॉग्स, सो गेट लॉग, एंटर। नाउ व्हेन आई सी, व्हाट डू आई सी? माय हेडर इज अगेन ऑन मेन, ठीक है, एंड नाउ आई हैव 2 कमिट्स, है ना? तो ये 2 कमिट आईडीज है। ये पहला वाला है जिसका मैसेज है इनिशियल कमिट, और ये दूसरा वाला आईडी है जिसका नाम है जिसका है सेकेंड कमिट ऑन मेन। ठीक है, तो नाउ आई प्रेस कंट्रोल L, थोड़ा सा स्क्रीन अनक्लटर करते हैं, एंड आई चेक माई दिस व्हाट ब्रांचेस, गेट ब्रांच NCH -v, okay, so get branch -v, okay। तो अब देखोगे तो क्या है, इनिशियल कमिट चेरी ब्रांच के लिए है, मर्ज ब्रांच के लिए है, रीबेस ब्रांच के लिए, लेकिन मेन ब्रांच आगे बढ़ गया है। यस, देयर इज अ सेकेंड कमिट ऑन मेन, है ना, जिसका आईडी भी डिफरेंट है। यस, ये दिख रहा है ना यहाँ, ओके। So similarly, now we will go to our merge branch. ठीक है, so that is what is it? Get checkout, right? Get checkout, MERGEPRAN, sorry, NCH, branch नहीं रे, CH, get branch, merge branch, गलत हो गया क्या? MER, अच्छा मैंने लिखने में गलती कर दिया, MREGE कर दिया है। तो अलग पड़ता है हाँ, merge को। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, MRE कर दिया, तो स्विफ्ट। ठीक है, मैं उसको रीनेम नहीं करूँगा, मैं अपना यहाँ पे ही वो चेंज कर दिया, ओके। सो गेट चेकआउट मर्ज ब्रांच, मैं अभी मर्ज ब्रांच पे आया, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ गेट लॉग्स, तो कितने कमिट है? एक ही है, ऑलराइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टच, ओके। यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग ये करेंगे, क्या, टच, एंड देन व्हाट, मर्ज डॉट txt। ठीक है, तो ये मर्ज फाइल मैंने बना दिया, इसको गेट ऐड करता हूँ, गेट ऐड नहीं, गेट ऐड, गेट डॉट, ठीक है, करेक्ट। तो स्टेजिंग एरिया पे आ गया। अब मुझे करना है कमिट, -n, और फिर कमिट मैसेज मेरा आएगा सेकेंड कमिट, सेकेंड on merge branch, ओके। तो सेकेंड कमिट और मर्ज ब्रांच। अब मैं जब लॉग चेक करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, मुझे 2 कमिट्स दिखते हैं, दैट इज इनिशियल कमिट एंड सेकेंड ऑन मर्ज ब्रांच। ठीक है, तो इस तरह से नाउ आई हैव 51 मिनट्स। तो पहले हम लोग मर्ज को करते हैं, ठीक है, मर्ज को मर्ज करते हैं, फिर वहां पे जाके ये करेंगे, या फिर बना ही लेते, चलो चलो, लेट्स डू दैट वे। गेट चेकआउट, फिर फटाफट करेंगे, ओके। मर्ज ब्रांच के बाद क्या है, रीबेस ब्रांच, गेट चेकआउट रीबेस ब्रांच, देन टच। ये टच से क्या हो रहा है, सिर्फ फाइल बन रहा है, ओके। तो फाइल का नाम सिर्फ देना है रीबेस डॉट txt, हाँ। तो फिर गेट ऐड और फिर डॉट एंटर, ठीक है, गेट कमिट -n, हर एक का प्रोसीजर सेम ही है, ओके। सो सेकेंड कमिट
commit on ठीक है. And then if I check my logs over here, what do I have? I have two commits. Okay, first is the initial and the second is rebase wala, second commit on rebase. Similarly, I go to my this cherry branch. Okay, तो ये rebase मैं हटा देता हूँ. ओके, चेरी ब्रांच. फिर से यहाँ पे मुझे एक फाइल ऐड करना है, तो टच यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इस टेक्स्ट को, इसको करता हूँ चेरी. ठीक है, वैसे चेरी एंड देन ऐड करता हूँ इसको और फिर कमिट करता हूँ. ओके, सेकेंड कमिट ऑन एंड देन चेरी ब्रांच करना है मुझे. जी बता दो एंटर एंड देन मैं लॉग्स चेक करता हूँ. और अब मैं ये बहुत फास्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास पहले से कमिट्स ये कमांड्स लिखे हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है. ओके, सो आई हैव दिस सेकंड commit on cherry branch. Okay, I also need a third one, right? So I'll add one more file. Okay, so touch हाँ, ये टच. अच्छा, चेरी वाला क्या है क्या? चेरी 2 लिखता हूँ यहाँ पे. ओके, cherry 2.txt इसको ऐड करना है, इसको कमिट करना है, इसको कमिट को सेकंड को निकाल के मुझे करना है थर्ड. ओके, सो THIRD थर्ड. ओके, देन आई चेक माय लॉग्स एंड आई हैव 3 ऑन चेरी. ओके, तो वो सिचुएशन है जो मुझे यहाँ पे चाहिए था. ऑलराइट, कि यहाँ पे चेरी ब्रांच में मेरे 3 कमिट्स है, ये और बाकी के सब पे 2-2 है. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस व्हाट डू आई डू इज आई स्टार्ट माय प्रोसीजर्स. ओके, तो एक बार कंट्रोल L प्रेस करता हूँ, सब कुछ अनक्लटर करता हूँ. एक बार मैं अपने कमिट्स देखता हूँ, गेट सॉरी ब्रांचेस देखता हूँ, राइट. और हाँ सॉरी, मैंने चेकआउट नहीं किया मेन को. सो गेट चेकआउट और मेन लिख दिया मैंने. ओके, तो नहीं, मेन मैंने रिबेस कर दिया, रीनेम कर दिया था. तुमने नहीं किया? जिसने जिसने रीनेम नहीं किया है मेन ब्रांच को, तो उसे लिखना है गेट ब्रांच BRANCH फिर -M और फिर मास्टर और फिर मेन लिखना है. ओके, अभी अगर तुम्हारा मास्टर है अभी तो ठीक है, तो ये करना है सबको. ठीक है, तभी मैंने सीधा मेन लिख दिया था क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ये नहीं था. ओके, इफ आई शो यू दैट वन, ये देखो यहाँ पे था. ओके, लेकिन इस पॉइंट पे ओके मैंने मास्टर मेन नहीं लिखा था, सीधा मेन लिख दिया था. ऑलराइट, लेकिन उस पॉइंट पे मेरे पास कोई और नहीं था, ब्रांच एक ही था, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था कि किसको रीनेम करना है. एक ही ब्रांच था, उसी को रीनेम करना है, राइट. लेकिन अभी तुम्हारे पास बहुत सारे ब्रांचेस है, तो तुम्हें एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा. इसीलिए तुम्हें क्या करना है, अभी मास्टर मेन लिखना है. ठीक है, गेट ब्रांच -M फिर मास्टर और मेन. ठीक है, तो अब मैं गेट चेकआउट मेन किया एंड नाउ आई परफॉर्म माय मर्जर. ओके, तो गेट मर्ज और ब्रांच का नाम है MERGEBR. अच्छा, मैं मर्ज का नाम गलत दिया है ना, लेट मी जस्ट चेक. गेट BRANCH -V. हाँ, मर्ज का नाम गलत दिया है मैंने, तो गेट MERGE and MREGEBR
BRANCH। ओके, तो अभी जब मैं इस ब्रांच को मर्ज करता हूँ, ओके, सो इट शोज दिस काइंड ऑफ स्क्रीन। ओके, सो व्हाट दिस इज नथिंग बट द कमिट मैसेज दैट यू हैव टू राइट। ओके, तो अभी ये देखो बाय डिफॉल्ट लिख के आ रहा है मर्ज ब्रांच, that is merge branch into main. What is it is doing is it is merging the branch, that is merge branch into main. Okay, so please enter commit message to explain why this merger is necessary. So if you want to explain this to your team, okay, कि ये commit क्यों necessary है वगैरह वगैरह, तो वो यहाँ पे और add करके तुम लिख सकते हो जो भी तुम्हें कथा लिखनी है वो। ओके, हमें कुछ नहीं लिखना है। ओके, आई वांट टू सिंपली सेव दिस। तो सेव करने के लिए आई गेस कंट्रोल एस है या कंट्रोल एक्स है, देखेंगे। कंट्रोल एक्स है। ओके, तो कंट्रोल एक्स प्रेस करोगे तो सेव हो जाएगा। ऑलराइट, एंड इफ आई चेक माय लॉग्स नाउ आई शुड सी दैट मर्जर। ठीक है, तो वो जो ऊपर व्हाइट में लिख के आ रहा था मर्ज ब्रांच इनटू मेन, है ना, तो वो लिख के आ रहा है यहाँ पे। उसके अलावा मैंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया उसको। ठीक है, तो वो जो बाकी का था सारा कमेंट्स में था। ठीक है, तो जस्ट प्रेस कंट्रोल एक्स और वो निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे बोला था मेन ब्रांच में मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास इनिशियल कमिट है, मेरे पास मेन का सेकेंड कमिट है, मेरे पास मर्ज का सेकेंड कमिट है, एंड देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया है उसने। ओके, तो बेसिकली उसमें सिर्फ एक मैसेज है, राइट, एक हेडर है which takes the main forward, okay, main branch forward. All right, so now और ये देखो मेरा जो मर्ज ब्रांच जैसे मैंने बोला था मर्ज ब्रांच उस पॉइंट पे ही है। ठीक है, उसी पॉइंट पे है। ऑलराइट, ओके, सो नाउ इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिबेस कर रहे हैं। वी आर स्टिल ऑन मेन, राइट, सो गेट रिबेस एंड REBASE BRANCH, git rebase branch, enter. Okay, it is applying second commit on main, it is applying what second commit on main branch and right। और फिर अभी मैं इसका logs देखता हूँ, राइट। तो logs जब मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या है, इनिशियल कमिट है, सेकेंड कमिट है, सेकेंड कमिट ऑन मेन है, सॉरी सेकेंड कमिट ऑन रीबेस है। जैसे मैंने बोला था रीबेस के आगे वो ऐड करेगा, राइट। कहाँ गया ये मेन था। ओके, मेन से जहां पे स्प्लिट हुआ वहां से उसने क्या किया, रीबेस के आगे सब कुछ ऐड करने लगा, राइट। ये हमने 2 बार किया है। तो बेसिकली यहाँ से रीबेस था यहाँ पे, फिर रीबेस को आगे बढ़ाया, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे वो अटैचमेंट था, फिर हमने और एक ऐड कर दिया था। तो ये अभी हम लोग जो पॉइंट देख रहे हैं वो ये है कि C4 है, फिर C4 के बाद C2 और C3 उसने ऐड कर दिया है। ओके, ऐसा वाला हमने ये नहीं देखा है, हमने ये देखा है। ओके, राइट। सो ये चीज है ना यहाँ पे, वो जो विजुअलाइज करते हैं ना, विजुअलाइजेशन टूल, वहाँ पे समझना बहुत आसान हो जाता है कि पहले क्या है। तो इनिशियल कमिट है जिसमें F1 था, राइट। फिर है सेकेंड ऑन रीबेस ब्रांच, तो रीबेस ब्रांच में क्या था, रीबेस डॉट txt था। फिर मेन ब्रांच का कमिट आया जिसमें F2 डॉट txt था, और फिर सेकेंड ऑन मर्ज ब्रांच। ओके, तो सेकेंड ऑन मर्ज ब्रांच में क्या है, मर्ज डॉट txt। ओके, तो ये ऑर्डर है जो फॉलो किया गया है। ठीक है, राइट। और हेडर किसके पास है, मेन के पास है। अभी भी देखो हेडर मेन के पास है और ये रीबेस है। तो अभी इसका मतलब ये है क्या कि मेरा रीबेस, या जैसे मैंने बोला कि मेरा रीबेस और मेरा जो मर्ज था वो चला गया नहीं। इफ वी चेक ऑल द ब्रांचेस, ठीक है, गेट ब्रांच माइनस भी करेंगे तो ये सारे के सारे ब्रांचेस वहीं पे वैसे है। सिर्फ क्या हुआ है, उनका प्लेसमेंट्स अभी चेंज हो गया। अभी मेन आगे बढ़ गया है बहुत ज्यादा, सेकंड कमिट ऑन मर्ज उसमें बहुत कुछ ऐड हो गया है ना।
चेरी ब्रांच थर्ड पे है, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया था। मर्ज सेकंड पे ही है, ओके, सेकंड ऑन मर्ज पे, और रिबेस सेकंड पे ही है, बराबर। मेन ब्रांच आगे बढ़ गया, उसमें बहुत कुछ हम लोग ने ऐड किया, उसका लीनियर स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे तो लीनियर स्ट्रक्चर हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो वो विजुअलाइज हमें वहाँ पे करना था। ओके, नाउ आफ्टर डूइंग दैट व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू कॉपी आवर सेकंड कमिट ऑन चेरी पिक ब्रांच, ओके। सो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले git checkout, okay, let's just press Ctrl L first, okay, and write git checkout. बहुत ऊपर चला गया सर, हाँ ये चेरी ब्रांच, ओके, चेरी ब्रांच पे चले जाओ, ओके। चेरी ब्रांच पे जाने के बाद जस्ट चेक दी लॉग्स, सो गेट लॉग्स। थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, लेकिन दैट्स दी एंड, अभी हम लोग एंड तक ही पहुंच रहे हैं, ओके। सो ये गेट चेरी ब्रांच पे हम लोग जब देखते हैं तो ये 3 कमिट्स है, इनिशियल है, सेकेंड है और थर्ड है, ओके। और हेडर किसके पास है, चेरी ब्रांच का चेरी थर्ड कमिट के पास है। हम लोग थर्ड को ना कॉपी करके हम लोग इसको कॉपी करेंगे, तो इसको राइट क्लिक करो, कॉपी करो, ठीक है, इसको राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, ऑलराइट। एंड व्हाट डिड आई से, आई सेड your header is on cherry branch, right? What you want is your header should be on main branch, okay. So git checkout main, okay. So now I am on my main branch, चालू है ना, so बीच बीच में देखना भी चाहिए। So git checkout main. Now that I am on main branch, let's check my logs. So git log में check करता हूँ, मेरा log का लिस्ट बहुत लंबा है, राइट, इसके लिए मेन के लिए क्या है, इनिशियल है, सेकेंड ऑन रीबेस, सेकेंड ऑन मेन, सेकेंड ऑन मर्ज, ओके। सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंस माय हेडर इज ओवर हियर, राइट, ऑन मेन, तो यहाँ पे मुझे वो कमिट कॉपी करना है, ओके। सो माय कमांड इज गेट, अच्छा मैं कंट्रोल एल प्रेस कर देता हूँ, सो गेट CHERRY minus, that is hyphen PICK, and then the commit hash. So sorry, not control V, just right click and paste, okay. Git cherry pick and the commit ID, press enter, okay. ये करने के बाद just check the logs again, alright। तो ये जो second commit on cherry था वो अभी मेरे main पे है, alright। बाकी के सब commits तो वैसे ही है, initial था, फिर सेकेंड ऑन रीबेस था, क्योंकि रीबेस पे हम लोग ने रीबेस किया था, राइट। तो रीबेस है, फिर मेन है, फिर मर्ज है, राइट, और फिर चेरी है ना। तो ये ऑर्डर में सारे के सारे आ गए, इज दैट क्लियर, ओके। तो वही है जो हमने देखा था, राइट। तो दैट इज हाउ यू विल परफॉर्म दिस, ओके। इसके अलावा जो भी है गेट रीसेट वगैरह, ओके, गेट रिवर्ट, ऑलराइट, ये सारे के सारे तुम लोग यू कैन ट्राई इट आउट, ओके। लेट्स ट्राई गेट रिवर्ट, गेट चेकआउट OUT, और चेरी ब्रांच पे जाते हैं, CHERRYBRANCH, ओके। और चेरी ब्रांच पे जाने के बाद मैं लॉग्स चेक करता हूँ, तो ये 2 लॉग्स है, राइट। तो इसको कॉपी करता हूँ मैं, ओके, द लेटेस्ट वन, ऑलराइट, और मैं लिखता हूँ गेट रिवर्ट, हाँ, और फिर वो आईडी पेस्ट करता हूँ, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, है ना। गेट रिवर्ट आईडी, ओके, एंड इट सेज रिवर्ट थर्ड कमिट ऑन चेरी ब्रांच, ओके। और फिर दिस रिवर्ट्स मतलब बेसिकली अनडूज, ऑलराइट, द कमिट, और वो जो कमिट का आईडी आया था वो,
ऑलराइट। अब इसके अलावा उसमें कोई रीजन वगैरह लिखना है तो वो तो अलग बात है, जब तुम कंपनी में जाओगे तो लिखना, मुझे कुछ नहीं लिखना। ओके, तो कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा, मैं बाहर आ गया। अब मैं चेक करता हूँ मेरे लॉग्स। ओके, तो जैसे मैंने बोला था, हुआ क्या, उसको उसने डिलीट नहीं किया है। कहाँ गया ये थर्ड कमिट ऑन चेरी ब्रांच को, उसने डिलीट नहीं किया। व्हाट इट डिड वाज, इट एडेड अनदर branch, another commit with which undoes the changes। अब ये changes, हाँ changes तो हम लोग देखे ही नहीं। How do we check that the changes are done, undone, right? तो चेरी ब्रांच के थर्ड कमिट में हमने क्या किया था, एक फाइल ऐड किया था चेरी 2.txt, है ना। और अभी अगर हमने उसको अंडू किया है तो हमारे पास cherry.txt होना चाहिए। तो लेट्स सी इफ आई हैव cherry.txt, है बराबर ना। तो इनिशियल कमिट के पास से मेरे पास F1 है। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने ये चीज़ें नहीं दिखाई। ओके, तो ये चीज़ें तुम लोग देख लेना। ओके, अगर फिर से परफॉर्म करोगे तो हर एक चेंजेस करने के बाद, जैसे मर्ज किया है, फिर रिबेस किया है, फिर चेरी पिक किया है, तो उसके बाद हर एक के कंटेंट्स, फाइल के कंटेंट्स लिस्ट आउट करके देख लेना क्या क्या है। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला था, इनिशियल कमिट में हमने F1 ऐड किया था, तो वो हमारे पास है बराबर। फिर सेकेंड, अब इग्नोर दिस पास बिकॉज इट इज नेवर ट्रैक्ड। ओके, इट इज नेवर ट्रैक्ड, वो इग्नोर गिट इग्नोर उसको बराबर हैंडल करेगा। ओके, लेकिन वो लिस्ट में है। तो जब ये ls कमांड तुम लिख रहे हो ना, ये गेट का कमांड नहीं है। ओके, दिस इज नॉट अ गेट कमांड। ऑलराइट, सो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड है ये लिस्ट। ओके, तो इनिशियल कमिट है, इसमें F1 है। ओके, देन सेकेंड कमिट जो चेरी ब्रांच है उस पे चेरी आया था, cherry.txt। थर्ड जहाँ था उसमें cherry2.txt था, लेकिन अभी वो मैंने निकाल दिया है, राइट, बाय यूजिंग रिवर्ट, तो वो अंडू हो गया। ऑलराइट, इतना हो गया। और एक चीज मैंने बताया ही नहीं है किसी को भी, जो हम लोग ने रखी है अभी तक। ऑलराइट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने लिंक वगैरह सब कर दिया लेकिन पुश ही नहीं किया है कुछ भी। यस, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि हमने कुछ भी यहाँ पे पुश नहीं किया है। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस कैट वाला पिक्चर, ओके, और उसके बाद मैं डेवॉप्स के अंदर जाता हूँ तो ये खाली है। ऑलराइट, सो नाउ द लास्ट थिंग दैट विल सी इज पुश। तो कंट्रोल L प्रेस करेंगे। ओके, एंड मैं लिखूंगा यहाँ पे गेट, सॉरी गेट पुश ओरिजिन मेन, और आई हिट एंटर। ठीक है, तो गेट पुश ओरिजिन मेन विल ओनली पुश द मेन ब्रांच। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे कैट पे, क्या ये गिटहब पे, और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे ब्रांच 1 है और वो सारे फाइल्स है मेन के, है ना। यस, नाउ आई पुश द सेकेंड ब्रांच। सेकेंड ब्रांच कौन सा है मेरा, मर्ज है ना। उसी ऑर्डर में पुश करेंगे, MERGEBRANCH, एंटर। सॉरी, हाँ सॉरी, मैंने नाम अलग दिया है, मैं भूल जाता हूँ हमेशा। MRE, ये थोड़ा रीनेम ही कर देते हैं ना। सो गेट ब्रांच -m, तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। MRE मर्ज कैसे स्पेल किया था मैंने, MEGEBRANCH स्पेस और फिर MERGEBRANCH, बराबर ना। ओके, so now what I do is I push this merge branch। okay, I see it is successful। एक एक करके वेरीफाई करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, सेकेंड ब्रांच आया है। जब मैं इसको ड्रॉप डाउन को प्रेस करता हूँ, मर्ज ब्रांच पे जाता हूँ, तो आई सी देयर इज डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स दैट आर अवेलेबल ऑन मर्ज ब्रांच। ठीक है, देन अगेन
जब मैं इस पे जाता हूँ, कहाँ पे, इसको पुश करता हूँ, किसको, चेरी, ओके। तो चेरी ब्रांच को पुश कर रहा हूँ और लास्ट वाला है मेरा रिबेस, ओके। एंड वन लास्ट कमांड आई प्रॉमिस, इसके बाद पक्का रुक जाऊंगा मैं, ओके। दैट इज ये सब हम लोगों ने चेंजेस पुश कर दिए, राइट, ओके। सो नाउ वी डोंट रिक्वायर दिस चेंजेस एनी मोर, है ना। तो अभी ये मैं कॉपी कर रहा हूँ कमांड्स, ओके, पूरे के पूरे। हाँ, सी ये सारे के सारे कमांड्स है ना, तुम्हें तुम्हारे फाइल में लगाने, मतलब इसमें जो प्रिंट आउट लोगे ना, उसमें सिर्फ ये लगाने हैं, इसी फॉर्मेट में, ओके। जैसा दिखता है लगा दो, हाँ। और इसको क्या करना है तुम्हें, एक इसमें गूगल डॉक में पेस्ट करना है, ऑलराइट। सो मैं एक गूगल डॉक यहीं पे बना देता हूँ, ओके। लैब मैनुअल, अच्छा बाद में बना दूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा, ऑलराइट। फिलहाल के लिए मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कि मुझे करना क्या है, ऑलराइट। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको मैं अच्छा यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ फिलहाल, अगर बाद में पता चला कुछ और कॉपी कर लिया और फिर गुम हो गया तो, ओके। तो ये मैं पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मिनिमाइज किया, ऑलराइट। और इस फाइल को है ना मैं अभी क्लोज किया, ऑलराइट। और ये तुम्हारा डेवऑप्स A4 है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट दबा के डिलीट कर दिया, ओके। शिफ्ट डिलीट कर दिया मैंने। एंड नाउ व्हेन आई राइट क्लिक, ओके, मैं ओपन इन टर्मिनल करता हूँ, ओके। आई डू sudo स्पेस su, एंटर, ओके। और पासवर्ड डालता हूँ PCEIT101, एंटर। अब मुझे क्या करना है, सी आई डोंट हैव दैट फाइल, ओके। तो पहला सिनेरियो ये था कि तुमने तुम्हारे डेस्कटॉप पे कोई एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उसके फाइल्स पुश किए, ओके। तो ये वो सिनेरियो जहाँ पे तुमने 4 ब्रांचेस पुश किए लगातार, ओके। तो ये वो सिनेरियो है ना। एंड नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू पुल दिस चेंजेस, ओके। तो ये इसका कोड है ना, ये कॉपी कर लें, ओके। जस्ट कॉपी करना है इसको, ऑलराइट। एंड यू हैव टू कम ओवर हियर and just write git gitclone and then paste the URL, okay। अब इसके लिए फिर से उसको पुश का रिक्वेस्ट हमको नहीं भूलना चाहिए, अच्छा बोल दिया। तो फिर हम लोग इस URL के साथ ट्राई करेंगे जो हमने अभी बनाया है। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, कुछ करते टाइम से टोकन ही लगे। हाँ पुल कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, पुश नहीं कर रहा हूँ, ओके। ये पुल, तो यहाँ पे सॉरी गेट CLONE, ये पुल रिक्वेस्ट जो है ना, ये क्लोन का, दिस इज व्हेन आई वांट द एंटायर डायरेक्टरी, ओके। और इसके आगे डॉट गेट लिखना है मुझे, डेस्टिनेशन डेवऑप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा यहाँ पे और एक डेवऑप्स नाम का फोल्डर भी है, डेवऑप्स शोपिली, ओके। तो ये मैं राइट क्लिक किया, कंट्रोल L प्रेस किया, ये git clone एंड दिस, ओके, git clone। और फिर मैंने वही URL जो मैंने कस्टमाइज बनाया था, https:// फिर मेरा टोकन, फिर @git और फिर पूरा devops.git तक मैंने किया। और इसके बाद जब मैं देखता हूँ ls, तो मेरे पास एक DevOps है, ओके। सो आई गो इनटू दैट डायरेक्टरी devops, एंटर करने के बाद अगर मैं इधर देखूं कि git -v, तो मेरे पास ये मेन है ना, ओके। एंड अगर मैं
लॉग्स चेक करूँ, गेट लॉग, तो ये सारे लॉग्स मेरे पास है। ओके, तो मैं मेन पुल कर दिया है ना। अभी यहाँ पे मैं क्यू लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, ऑलराइट। एंड फिर सिंस आई हैव ऑल दी कनेक्शंस, व्हाट आई कैन डू इज गेट पुल एंड ओरिजिन, सॉरी ORIGIN, और फिर समझो मुझे मर्ज ब्रांच चाहिए। ओके, BRANCH, ऑलराइट, एंटर करता हूँ। गेट पुल ओरिजिन ब्रांच, ये पुल कर रहा है। ओके, कंट्रोल X में लिखता हूँ, ऑलराइट, कंट्रोल L प्रेस करता हूँ, फिर से लॉग्स चेक करता हूँ, सॉरी ब्रांचेस चेक करता हूँ। ओके, तो ब्रांच माइनस ए क्या, हाँ ओके। तो गेट ब्रांच माइनस ए जब मैं देखता हूँ तो ये जो रिमोट्स के सारे ब्रांचेस है वो मेरे पास है। ओके, तो ये एक एडवांटेज है। आई गेस आई कैन स्विच ऑल्सो, लेट मी जस्ट सी गेट ओके, नहीं हो पा रहा है, तो आई गेस आई विल हैव टू पुल दिस अगेन। तो जैसे मैंने गेट का डेवऑप्स पुल किया है, उसके साथ गेट पुश, गेट पुल ओरिजिन मर्ज ब्रांच करना चाहिए था उसको, अपडेट ऑलरेडी अप टू डेट बोल रहा है, लेकिन दिखा नहीं रहा है। अच्छा हाँ, मर्ज ब्रांच है अभी, ये देखो, है ना, ये मर्ज ब्रांच है, आ गया है। आई डोंट नो व्हाई इट डिड नॉट शो इट ओवर हियर, ऊपर नहीं दिखाया था, लेकिन अभी देखो ये दो जो है ना, इसमें मर्ज ब्रांच अभी है। तो अगर मैं लिखूँ गेट पुल ओरिजिन मर्ज ब्रांच, तो मेरे पास मर्ज ब्रांच आएगा। सिमिलरली अगर मैं बाकी का कोई भी रिमोट ब्रांच में पुल करना चाहूँ, आई कैन जस्ट लिस्ट इट गेट ब्रांच माइनस ए से, और फिर पुल कर सकता हूँ इसमें से कोई भी एक। तो बेसिकली वो ब्रांच मेरे पास आ जाएगा और वो चेंजेस आ जाएंगे। ओके, ऑलराइट, सो दैट विद दैट आई स्टॉप। इसके अलावा जो भी लैब मैनुअल में है, ओके, लैब मैनुअल में जो भी कमांड्स दिए हैं वो सारे तुम्हें ट्राई करने। ये वाले इधर तक के, एटलीस्ट क्लोन तक के जो है ना, अभी मैंने जो दिखाए हैं, वो तुम लोग मैं ये नहीं पास करूंगा। ओके, ये इसमें मेरा टोकन वगैरह है सब कुछ, तो ये मैं पास नहीं करूंगा। लेकिन तुम लोग अपना अपना फाइल्स इसी ऑर्डर में, अभी ये रिकॉर्डिंग जब बन जाएगा तो मैं शेयर कर दूंगा। ओके, तो इसी ऑर्डर में तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, और जो फाइल बनेगा, ठीक है, उसका एक प्रिंट लेके आना है। मैंने वो राइटअप जो है क्लासरूम में डाल दिया है स्ट्रीम में। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज फॉर डेवऑप्स का इंट्रोडक्शन, 2 इज फॉर वर्जन कंट्रोल सिस्टम, दैट इज गेट। ओके, और यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। किसी का कोई डाउट हो पूछ लो, मेरे अभी मैं थक गया, लेकिन पूछ लो। अनम्यूट करके पूछना, टाइप मत करना, मैं पढ़ेगा नहीं। नहीं है? Okay, so then we will stop over here. Thank you all for joining. You can leave. मैं तुम्हारा अटेंडेंस कॉपी कर लूँगा और फिर मैं क्लोज करूँगा। तो तुम्हें निकलना है तो निकल सकते हो, मैं सिर्फ अटेंडेंस मार्क करूँगा। बाकी मैं किसी चीज़ के लिए रुक नहीं रहूँगा। ओके, so if you have any doubts till then you can ask, otherwise you can leave. ठीक है, डोंट वरी, जिसने जिसने भी प्रेजेंट लिखा हुआ है तो उनका सबका मैं मार्क करूँगा अटेंडेंस। राइट, सो डोंट बी बॉदर्ड अबाउट दैट। अरे हाँ, ये लोग दोनों, तुम्हारा रोल नंबर बोलो। 60 साइन कर लो। अच्छा, यहाँ पे 21 है ना, 21 और मैं
तू एक था ना, आपके तो मेरे 2, तो 19 और 20, तो पूरा बैच ही हो गया ना। हाँ ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्या, पूरा बैच ही हो गया। 2 कौन लॉग इन किया? सर यहाँ पे भी करो, डॉट किया। हाँ डॉट किया ना, कर दो, तुम्हारा भी कर दो। ओके, सो बेसिकली तुम्हारा सबका अटेंडेंस लग गया क्योंकि तुम लोग सभी यहाँ पे लॉगिन हो, किसी का डबल तो लॉगिन मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, तो एवरीवन इज लॉग इन। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग, यू कैन लीव, थैंक यू।